Jai Hind everyone. We are reading lesson 1, The Fun They Had. In this lesson we have read about Tommy and Margie and about the kinds of schools and teachers we are going to have in 2157 years. Everything is virtual. In this lesson they found a book, the old kind of book written about the old kind of school and the old kind of teachers, and both Tommy and Margie are very amused to think about the old kind of education system. Till now we have read the one word and a couple of sentences answers and 30 words answers. So today we are going to discuss the answers which we have to write in 100 to 150 words. I've always tell that it's very important to write the answer in the given specified word length. So one word answer you have to answer in one word. 30 words you have to answer in your answer can vary from 25 to 40 words, but don't exceed them. And answers 100 to 150 words you need to answer in around not less than 100 and not exceeding 150 words. Try to keep your answer in between 100 to 150 words. Alright. So in these kind of questions, these are the detailed question, as we say in common language. These are the detailed answer. So in language answers, when we have these kind of detailed answer, we always need to write first the introduction and context, and then we write the answer. And I have already told that whenever we start a new topic, a new sense, then we always change the paragraph. So the questions will be in minimum 3 paragraphs. First paragraph will be the introduction, the name of the book, the name of the chapter, the name of the writer from where this question has been taken. Paragraph second will be the context, means it will be a 1 or 2 line summary of the chapter. And from paragraph 3 your question will start, and again in the question itself you will change the paragraph as and when required. Alright. So paragraph 1, since it will be same in all these detailed questions, so I'll discuss first. The introduction will be, we'll write is, this question has been taken from class 9th English main course book Beehive, lesson 1, in inverted comma the name of the lesson, The Fun They Had. The writer of this lesson is whoever is the writer, full stop. This is your introduction. You'll change the paragraph and you'll write the context. As I've told, context will be the 1 or 2 line summary of the chapter. So this lesson is set in 2157, where only virtual school and virtual teachers are present. Tommy and Margie have found an old book about old kind of schools and teachers. This is the context. Alright. Paragraph 3. Here begins the answer. So question 1. What are the main features of the mechanical teachers and the classrooms that Margie and Tommy have in the story? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो मार्गी एंड टॉमी को बुक मिली है, मार्गी एंड टॉमी को जो 2157 के जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनके जो मैकेनिकल टीचर्स और उनके जो स्कूल रूम्स हैं उनके क्या क्या फीचर्स हैं. तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें अलग अलग 2 पैराग्राफ तो आपको यहीं दिख गए. एक पैराग्राफ में आप पहले मैकेनिकल टीचर के बारे में बताओगे, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप मैकेनिकल स्कूल रूम्स के बारे में बताओगे. ओके. तो पहले पैराग्राफ में आप मैकेनिकल टीचर के बारे में लिखोगे, उनके क्या फीचर्स हैं. तो हमने पढ़ा है कि जो मैकेनिकल टीचर है उसकी एक बिग अगली ब्लैक स्क्रीन है जिस पर सारे लेसन शो होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स शो होते हैं. उनमें एक स्लॉट स्पेशल बना हुआ है जहाँ की होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट किए जाते हैं, और उन टेस्ट पेपर्स को लिखने के लिए इनको एक स्पेशल पंच कोड सिखाया गया है. ठीक है. ये मैकेनिकल टीचर्स के फीचर हैं. स्कूल रूम के क्या फीचर हैं? स्कूल रूम जो है वो उनके घर में ही एक रूम बना हुआ है जिसमें कि उनके सारे इक्विपमेंट्स, मैकेनिकल टीचर और उनकी कंप्यूटर स्क्रीन्स और वगैरह उनके सारे गैजेट्स जहाँ पर उसमें रूम में रखे हुए हैं. वहाँ पर उनके कोई क्लासमेट्स नहीं हैं क्योंकि सबके अपने अपने घरों में हैं. तो वहाँ पर उनके कोई क्लासमेट्स भी नहीं है, उनको कहीं नहीं जाना पड़ता. वो अपने
अपनी हिसाब से, अपने एडजस्ट करके, अपने ब्रेन के हिसाब से एडजस्टेड टीचर्स में वो लोग अकेले अकेले पढ़ते हैं, ठीक है। तो एज आई हैव टोल्ड, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ कॉन्टेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ मैकेनिकल टीचर्स। सो क्योंकि फीचर्स पूछे हैं तो आप ऑलवेज एक लिस्ट बनाकर लिख सकते हो, तो आप इसको लिखोगे, द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी आर फॉलोइंग, ठीक है। फिर आप पॉइंट नंबर 1 डालोगे, दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर रोबोटिक, रोबोट्स। सेकेंड पॉइंट, they have a big ugly screen on which all the lessons and questions are shown and questions are asked. Third, they have a special slot where homework and text papers are put. Fourth, to write, students have been taught special punch code. Alright, तो आपने 4 फीचर्स मैकेनिकल टीचर्स के लिख दिए हैं। फिर आप पैराग्राफ चेंज करोगे और लिखोगे, the main features of the school rooms that Margie and Tommy have in the story are. Point number 1, the school rooms are in their home itself. It's their bedroom or any room in their house. Point number 2, the school room has all the gadgets and robot and mechanical teacher. Third, the students they don't have any classmate. Fourth, the teachers teach them according to their particular age and mind level. ओके, तो आपने मैकेनिकल टीचर और स्कूल रूम दोनों के ही 4 फीचर्स आपने आंसर में लिख दिए हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपके 4 पैराग्राफ बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत थी और उसे क्यों लगता था कि ये जो पुराने स्कूल्स थे, जो जिसके बारे में उसने बुक्स में पढ़ा, उनमें बहुत मज़ा आता होगा। तो जब हम इसका आंसर करेंगे तो वही इंट्रोडक्शन और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। थर्ड पैराग्राफ में हम आंसर करेंगे कि मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत थी। तो मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत थी, क्योंकि एक तो वो रोबोटिक्स टीचर से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और बहुत ही पुअर परफॉर्म करती थी वो टेस्ट में, ठीक है। उसको टीचर्स से भी टीचर्स उसको नापसंद थे। और उसे क्यों लगता था कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल अच्छे रहते होंगे, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ कितने सारे बच्चे एक साथ मिलकर हंसते खेलते होंगे, मिलकर पढ़ते होंगे, तो हमेशा वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी एक दूसरे के पास में रहते होंगे। मतलब अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ 2 कॉन्टेक्स्ट, पैराग्राफ 3 मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज it was boring for her as she was all alone and she wasn't very comfortable in with the robotics teachers. She hated her teachers and also because she was not able to perform good in her any subject. So she hated school. Paragraph change, why did she think the old kind of school must have been fun? She thought the old kind of school must have been fun because all the kids went there together. They all read same thing. They must have had fun. They must have laughed. They must have played together. They must have went together. They must have left together. And if anyone faced a problem, her friends would be there to help her. So she thought the old kind of school must have been fun. Alright. Question 3. Do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reasons for your answer. तो क्या आप एग्री करते हो कि मार्गी से क्या आप सहमत हो कि जो आज के स्कूल हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू मार्गी वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो आपके आज के स्कूल हैं, तो क्या आपके जो आज के स्कूल्स हैं वो इस स्टोरी में जो 150 साल बाद के कंप्यूटराइज्ड स्कूल हैं क्या उनसे बेटर हैं? क्या आप भी सहमत हो? आप अपने कारण आंसर का आपको रीज़न देना है। तो मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन दीज आर. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट योर ओपिनियन. सो यू कैन ईदर बी एग्री और you can be disagree also. So you can write yes I agree or you can write no I don't agree. ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि हाँ आज के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं, बाद वाले स्कूल अच्छे नहीं हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि नहीं आज के स्कूल मुझे पसंद नहीं है, मेरे को लगता है कि ये वर्चुअल स्कूल ज़्यादा अच्छे रहते होंगे.
बस एक तो आपकी लैंग्वेज ढंग की होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और आपको अपने आंसर के रीज़न देने हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरा लेवल डिस्कस, मैं मेरा ओपिनियन डिस्कस कर रही हूँ, आप अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग यस और नो कर सकते हो। तो मैं इसमें लिखना चाहूँगी कि हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ मार्गी से कि जो आज के स्कूल्स हैं ये ज़्यादा फन हैं, और मेरे आंसर के रीज़न क्या क्या हैं वो मैं पॉइंट में लिखूंगी। द रीज़न फॉर माई आंसर्स आर फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 कि हम पहले तो जैसे मार्गी ने ही कहा कि इतने सारे बच्चे, अकेले नहीं हो, आपके इतने सारे फ्रेंड्स आपके बनते हैं जिसके साथ आप लर्निंग भी फन बन जाती है, आप अकेले बोर नहीं होते, और अगर आप कहीं फंसते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी हेल्प करने के लिए आपके फ्रेंड्स मौजूद होते हैं। जबकि ये जो वर्चुअल स्कूल है अपने घर में ही बैठे हैं, तो आपकी हेल्प करने के लिए आप अकेले हो, यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड नहीं है। दूसरी बात ये कि जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो हम एडजस्टमेंट, कोऑपरेशन, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप स्किल, बहुत सारी स्किल्स और वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं। तो क्योंकि आप यहाँ पर अकेले हो तो आपका वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं लिखूंगी कि अकेले बैठना कितना बोरिंग है, जबकि फ्रेंड्स के साथ हंसते बोलने मस्ती करने का मज़ा ही और है। और चौथी बात कि जब आप कंप्यूटर के सामने आप बैठे हुए हो तो आपको हेल्थ हैज़र्ड्स भी हैं इसके बहुत सारे, आपकी आईज़ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, ओबेसिटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है चेयर पे बैठे बैठे वगैरह वगैरह। जबकि आप जाते हो, खेलते कूदते हो, एक जगह से दूसरे जगह बैठते उठते बैठते हो, तो फिर आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रकार 4 रीजंस मैं अपने आंसर के लिए दूंगी। ओके, तो आंसर हम इसका कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ कॉन्टेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ yes, I agree with Margi that schools today are more fun than the school in the story. Fourth paragraph, the reasons for my answer are following. Point 1, जो 4 पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए वही सारे पॉइंट्स हम इसमें लिखेंगे। तो ये आंसर्स के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको इन आंसर्स की PDF भी मिलेगी, आप वहाँ से भी इसे डिस्कस कर सकते हो। The grammar part we'll do in the next video. Thank you.